So the statement law of conservation of linear momentum and its derivation, we have formulated one formula yesterday, do you know that? And we are continuing our derivation. So meantime our class has been ended. So today we will again see how we derive this data. See what is FAB? It is the force due to B on A, while the body B exert a force on body A, then its momentum has been changed from m1 u1 to m1 v1. I mean m1 v1 is the final momentum and m1 u1 is the initial momentum. So what is change in momentum? It is final momentum minus initial momentum upon time. Okay. Similarly, come to FBA. Now the force due to A on the body B. Similarly, whenever the action takes place, there will be a reaction. So if FAB is the action, the subsequent reaction will be your FBA. So due to force on body B, its momentum also has been changed from m2 u2 to m2 v2. So for body B, the final momentum is m2 v2 and the initial momentum is m2 u2. So what is change in momentum? It is final momentum minus initial momentum upon time. Okay. So now let us put this value in this equation. See, m1 v1 minus m1 u1 upon delta t equal to, put negative sign, m2 v2 minus m2 u2 upon delta t. Okay. Now this both the time will get cancelled to each other. Now how the equation looks like? m1 v1 minus m1 u1. Now take this minus inside, minus m2 v2 plus m2 u2. Now you can exchange both the sides. m1 v1, let us take this m2 v2 that side, so it will become plus m2 v2 equal to, similarly this minus m1 u1 will go to that side and that will become m1 u1 plus m2. Here your formula already came. Finally you need to arrange it in order and you need to write the final formula is m1 u1 plus m2 u2 can be equal to m1 v1 plus m2 v2. This is what the final formula what we wanted at the beginning. Okay. So this is what indicates your law of conservation of linear momentum equation. The condition is it should always obey for isolated system, and this data indicates that your total momentum before collision, this was the total momentum before collision, is equal to the total momentum after collision. So this is what the initial condition, this is the final condition. So the momentum of initial condition has been restored into final condition, and that is what your law of conservation of linear momentum says. Okay, so note it down. Okay. So the next topic is application of law of conservation of linear momentum. Again
we will see application of law of conservation of linear momentum. Okay. So now we have seen how your linear momentum has been conserved. By using this equation, what are the application can be done? What is the use of this law of conservation of linear momentum? That also we will see. There are very famous two applications in your courses. One is recoil of gun, another is rocket propulsion. Rocket propulsion only you will read out the theory, and for recoil of gun you will deduce a small derivation. Okay. So first let us discuss recoil of gun. So first let me explain what is recoil of gun actually. Recoil of gun means whenever a gun fires, the bullet goes forward, simultaneously the gun moves backward. At what velocity the gun moves backward, that velocity is known as recoil of gun. Recoil means the gun is going backward. You can observe in any firing situation. If you have taken NCC in your high school career, there also you might have observed that whenever you are firing a gun, a bullet comes out of the gun and moving forward, right? At the same time, meantime, your gun is also going back with some velocity, and it's a very lesser velocity, right, comparing to the bullet. That velocity of gun is known as recoil velocity of gun, or simply we can tell this is recoil of gun. So today we will find out that how we can extract the recoil velocity of gun by the help of law of conservation of linear momentum. Okay, so let us discuss it. So let me draw a gun here. Actually, I am very poor in drawing now. Okay, drawing is not important. Concept is important. Okay, let us draw it. Okay, this is a gun. Okay, so here you have one bullet. Okay, this is a gun, and this is a bullet. Okay, so the velocity of bullet is very big, right? So I will indicate the velocity of the bullet by the symbol capital B. At the same time, the gun is also moving backward with a very small velocity. So I will indicate with a small v. Okay, and both are vector quantity. Both have direction. Okay, velocity is a vector quantity. You know that already. Okay. Okay. So what about mass? The mass of gun is quite bigger, no? So I will indicate it with capital M. And the mass of bullet is very small. That is your small m. Okay. So here for gun we have a bigger mass but smaller velocity. Here we have a greater velocity but smaller mass for bullet. And this is the very beginning elements of your recoil of gun. Now assume the situation. Initially, whenever you have not fired at all, during that time your bullet is in magazine and inside the gun. So now the gun is at rest as well as the bullet is at rest. So both are at rest. So both does not have any velocity. It means if both does not have any velocity, then its total momentum is zero. Can you get my point? Final momentum, initial momentum of the system. Let us assume that this gun and bullet pair makes a system, makes an isolated system. As I have told you earlier, that law of conservation of linear momentum is only applicable for isolated system where no external force has been applied to it. You see here, whenever the bullet is in magazine and the magazine is inside the gun, during that time you can assume that there is no external force acting at all, and the both gun and bullet are at rest, so they don't have
any initial momentum. So I can write here initial momentum of gun and bullet. Initial momentum of gun and bullet is 0. Why? You see, what is the formula for momentum? mv, the mass of gun is capital M, but its velocity is 0. Similarly, plus the mass of bullet is small m and its velocity is 0. This is the condition we are considering before firing. Okay. Initial momentum means before firing. You have not fired at all. During that time, what was your momentum of gun and velocity? And that gun and bullet. That we are discussing. Okay. So this is also 0. This is also 0. So you will get 0 for initial momentum. Okay. Now come to final momentum. Okay, you note it or take a screenshot. I will erase this one. Okay. Now, final momentum we will discuss. It means firing has been done. Firing has been done. It means you have pulled the trigger of gun. Already you have pulled the trigger of gun, and your bullet has gone outside the gun. So your bullet has done with a velocity of capital V. This is the velocity of bullet. Okay. And your small v is what? This is the velocity of gun. Can I write here? Your bullet is moving forward. Okay. So that will be much more crystal clear. Okay. And the velocity of gun is in backward direction, right? Okay. See, this backward movement, backward motion is also called as recoil velocity. Okay. This terminology is very important. Recoil velocity. Okay. So this is your recoil velocity. And you know the capital M is what? This is your mass of gun, no? Because gun is quite heavy. So I have taken a capital M. It's a bigger mass. And small m is what? This is your mass of bullet. Okay. This is your mass of bullet. So I will put here the formula. Final momentum. Let us see. Capital M. और गन का जो वेलोसिटी है वो स्मॉल v है ना, सो लेट अस पुट ए स्मॉल v प्लस स्मॉल m इनटू कैपिटल V, क्योंकि ये वाला जो वेलोसिटी है वो बुलेट का है. ये हो गया तुम्हारा फाइनल. चलो अभी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगाते हैं. मतलब मोमेंटम तो वेस्ट नहीं होने वाला है. जो भी तुम्हारा फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंट से आके स्टोर होते हैं. तो इसको इक्वेट कर दो किससे? 0 से. क्यों? क्योंकि तुम्हारा फाइनल मोमेंटम है इतना और इनिशियल मोमेंटम हमें मिल गया था 0. अभी करना क्या है? फोटो हमारा क्या है? हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है. डू यू रिकॉल माय फर्स्ट पॉइंट? हमने हेडिंग क्या डाला था? रिकॉइल ऑफ गन डाला था ना. मतलब हमें यहाँ पे निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी. कौन सा है वो रिकॉइल वाला वेलोसिटी? ये वाला है ना, स्मॉल v. छोटा सा v हमें निकालना है. तो यहाँ से निकाल दो ना. सो ये वाला तो उधर जब चला जाएगा. सो कैन आई राइट इट? So I will write here, see capital M into small v equal to ये अगर उस बाजू चला जाएगा तो ये माइनस mv हो जाएगा ना. अभी इस बाजू में सिर्फ v को रख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कुछ ऐसा दिखेगा फॉर्मूला. ओके, ये कुछ फॉर्मूला ऐसा दिखेगा.
चलो ये खत्म हो गया तुम्हारा रिकॉइल वेलोसिटी का जो डिराइवेशन था, इसको थोड़ा नोट करो। कमान नोट इट। स्क्रीनशॉट ले लो उसका या फिर नोट करो। तो इसका मतलब क्या है देखो, मान लो अगर कभी तुम्हें गन का कुछ मास दे गया है, एक बोला गया है कि तुम्हारे पास एक गन है जो उसका मास है करीब 3 kg के आसपास, एक बुलेट है तुम्हारे पास जो कि 50 ग्राम या फिर 70 ग्राम का है, ऐसा कुछ डेटा दे दिया और बुलेट का वेलोसिटी मान के दे दिया कि 200 मीटर पर सेकंड और 300 मीटर पर सेकंड। तो वो पूछ रहा है कि रिकॉइल वेलोसिटी निकालो, तो तीनों डाटा यहाँ पे पुट करो और इसका वेलोसिटी निकालो। अच्छा, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? नेगेटिव साइन ये बोल रहा है, मतलब हाँ, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा बुलेट का वेलोसिटी जिस तरफ है उससे ये ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन को मैग्नीट्यूड से कभी भी मत लिंक करना। नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है उसका। जो तुम्हारा नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये जो वेलोसिटी आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। नो, वेलोसिटी कैन नॉट, मतलब वैसे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब तुम मैग्नीट्यूड को लिंक नहीं कर सकते। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन का मीनिंग है वो है क्या एक्चुअली ना, बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट में मूव कर रहा है गन, वो है रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। बस इसको थोड़ा ध्यान दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा रिकॉइल ऑफ गन। चलो सेकंड जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो थोड़ा देख लेते हैं। तुम्हारा जो रॉकेट प्रोपोर्शन है उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। मतलब तुम्हारा एग्जाम वगैरह में आ जाता है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में राइट डाउन टू एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो तुम्हें बस रॉकेट प्रोपोर्शन का नाम ही लिखना है। एक तो है रिकॉइल ऑफ गन, दूसरा है रॉकेट प्रोपोर्शन, एक तीसरा भी है एक्चुअली बॉम्ब एक्सप्लोजन करके। तीसरा भी लिख लो, बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये जो एक्सप्लोजन वाला प्रोसेस जो होता है ना, ये भी तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को बेस करके। तो रॉकेट प्रोपोर्शन ये एक्चुअली होता क्या है, अगर तुमने टीवी वगैरह में कहीं पे भी देखा होगा, रॉकेट जो जाता है उसके पीछे से बहुत सारा गैस निकलता है ना, उसको फ्लू गैसेस बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, जब अर्थ से रॉकेट निकलता है ना तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन वो स्पेस को जाते जाते उसका वॉल्यूम उतना नहीं रहता है। एक्चुअली होता क्या है, एक चैम्बर, उसका एक गैस चैम्बर रहता है फ्लू गैसेस से पूरा भरा हुआ, वो जगह जगह पे ब्लास्ट करता रहता है, मतलब वो पीछे से गैस छोड़ता है, और वो जितना मोमेंटम से गैस छोड़ता है पीछे से, उतना मोमेंटम से वो रॉकेट को आगे पुश करता है। इसकी वजह से रॉकेट ऊपर 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 जा पाता है, क्योंकि वहां तो स्पेस में तो कोई हैंडल वगैरह नहीं है ना कि वो कोई ऐसे पकड़ कर चल लेगा। तो ये एक मैकेनिज्म है रॉकेट का, मतलब जो मोमेंटम है पीछे से जितना मोमेंटम छोड़ रहा है वो आगे से उसे इक्वली उतना मोमेंटम मिलता जा रहा है। इवन जहाँ पे भी डायरेक्शन भी वो चेंज कर रहा है, तुमने देखा होगा वीडियो वगैरह में कि रॉकेट करीब 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ से निकला हुआ साइज कुछ मान लो 50 मीटर था, तो वो स्पेस को जाते जाते 10 मीटर हो जाता है, तो बीच बीच में वो अपना पार्ट भी छोड़ता रहता है डायरेक्शन चेंजेस करने के लिए। एक्चुअली ये हमारा बियॉन्ड द सिलेबस है, इसके लिए पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारा एलिमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ तुम्हारा बेसिक्स था रॉकेट प्रोपल्शन का, जो कि तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम के अंदर आता है। और बम एक्सप्लोजन भी ऐसा ही है। बम एक्सप्लोजन मतलब कोई भी बम जब कॉलिजन करता है तो उसके अंदर से जो फ्रैगमेंट्स निकलते हैं ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी में
मोमेंटम को कंजर्व करके निकलते हैं। दैट्स वाई कोई भी बम अगर नीचे गिरा तो उसका जो फ्रैगमेंट्स है ना पूरा आर्बिट्ररी डायरेक्शन मतलब 360 डिग्री में निकलते हैं। ये भी एक हमारा एग्जाम्पल। बस हमें ये दोनों नाम ही याद रखना है, बस उतना ही याद रखना है और लिखना है। अगर कभी भी तुम्हारा एप्लीकेशन में आ गया कि राइट डाउन एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हो। तो एक है रिकॉइल ऑफ गन, दूसरा है रॉकेट प्रोपल्शन और तीसरा है बॉम्ब एक्सप्लोजन। ओके, चलो और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स स्टार्ट करते हैं। तीनों फोर्स तीनों लॉ खत्म हो गया। अगर तुम्हें याद होगा तो तीनों लॉ हम कवर कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अभी एक नया टॉपिक देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है ना, एक इंटरनल फोर्स है एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स। वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा देख लेंगे। मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ओके, जिसका ओरिजिनल लेंथ है x। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है x और जिसका ओरिजिनल लेंथ है, अभी मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्शन में ये स्प्रिंग को खींचूंगा। I will what I will tell, I will apply tension. I will pull. अभी ये स्प्रिंग को मैं यहां से पकड़ूंगा और इसे खींचूंगा, तो होगा क्या, डेफिनेटली इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। मान लो इसका लेंथ बढ़ के, मान लो इसका एज्यूम कर लो इसका लेंथ बढ़ के कुछ यहां तक हो गया, तो उसका लेंथ कितना बढ़ा, पहले यहां से इतना तक था, अभी इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एक्स। तो खींचने के बाद स्प्रिंग है जो तुम्हारा वो डेल्टा एक्स अभी बढ़ गया, मतलब अभी जो उसका नया लेंथ है ना वो एक्स नहीं है, वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि तुम जितना ज्यादा खींचोगे, मतलब तुम्हारा पुल जितना ज्यादा होगा, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, तुम्हारा पुल जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली तुम्हारा डेल्टा एक्स भी उतना ज्यादा होगा, जाहिर सा बात। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुक्स करके एक साइंटिस्ट कर रहे हैं, हुक्स, उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, बस उसी का चर्चा हम कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग को तुम खींच रहे हो तो वो एलोंगेट हो जाएगा, ये जो बढ़ गया है ना, इसको हम फिजिक्स लैंग्वेज में बोलेंगे एलोंगेट हो गया। इसका दूसरा वाला केस भी डिस्कशन करेंगे, फिर उसको प्रेस भी करेंगे जिसको कंप्रेशन बोलते हैं, पहले ये डिस्कशन करेंगे। तो तुमने स्प्रिंग को पुल किया, वो एलोंगेट हुआ। वो क्या बोल रहे हैं कि जब ये एलोंगेट होना शुरू होगा ना, तब स्प्रिंग के अंदर तुम जिस तरफ खींच रहे हो या फिर तुम्हारा एलोंगेशन जिस तरफ हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटरनली ऑटोमेटिक एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा यहां पे, तुम जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में स्प्रिंग के अंदर ऑटोमेटिक एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, वो एक इंटरनल फोर्स है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। उसको ऐसे तुम लिख सकते हो, एफ लिखो, एफ का मतलब है फोर्स, उसके नीचे एस पी लिख लो, पता चल जाएगा कि वो स्प्रिंग फोर्स। और हुक्स ने क्या बोला कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है,
जैसे कि तुम्हारा टेंशन एक कांस्टेंट फोर्स है, पता है ना, जब पूरे धागे में टेंशन लग रहा था तो पूरे धागे में टेंशन सेम रहता था, चेंज नहीं होता था। अगर तुम्हारा धागा ही चेंज हो गया, स्ट्रिंग ही चेंज हो गया तो टेंशन चेंज होता था। जब तक स्ट्रिंग नहीं चेंज होता था उसके अंदर जितना भी टेंशन लगते थे सब कांस्टेंट होते थे, राइट। लेकिन स्प्रिंग फोर्स ऐसा फोर्स नहीं, स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल हमें ये बोलता है कि तुम जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग फोर्स उतना बढ़ता होगा। मतलब हुक्स ने बोला कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये एलोंगेशन को, मतलब डेल्टा एक्स को, किसको? डेल्टा एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा, इसको मैं चाहूंगा थोड़ा बॉक्स बना के रखो। सो अकॉर्डिंग टू हुक, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। अभी ध्यान देने वाला बात यह है कि सिर्फ ये एलोंगेशन ही नहीं है, कंप्रेशन करोगे तो भी ये रूल अप्लाई। मतलब अभी मान के चलो कि यहां पर मैंने खींचने के बाद, मतलब खींचने के बदले इसको अगर ऐसे प्रेस करता, मतलब ऐसे स्प्रिंग को मैं दबाता, तो अभी क्या होता, ये उसका ओरिजिनल लेंथ था x, अभी उसका लेंथ कुछ घट जाता, मान लो इतना घट गया, छोटा सा घट गया डेल्टा x। तो अभी किस तरफ तुम दबा रहे हो? इस तरफ। तो इसके ऑपोजिट में, मतलब इस तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग के अंदर, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। और तुम जितना ज्यादा दबाओगे, मतलब डेल्टा एक्स जितना ज्यादा होगा, एफएस भी तुम्हारा उतना ज्यादा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही वही होता है, राइट। सो यहां से हम लिखेंगे एफएस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। तो हमारा दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे वहां से, और तुम्हें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने से कांस्टेंट आ जाता है। चलो हटा लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा लूंगा तो एफएसपी जो है ना, वो k इंटू डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा। ये जो k है ना, ये तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका एक बढ़िया सा नाम है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसके बारे में ढेर सारा चर्चा होगा अभी। स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एफएसपी है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स, के है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा एक्स को तुम बोल सकते हो, क्या बोलोगे? एलोंगेशन बोलो या फिर कंप्रेशन बोलो, हाँ दोनों ही चलेगा, दोनों ही करेक्ट। या तो एलोंगेशन बोलो या फिर बोल दो कंप्रेशन। खींचना भी होता है या फिर प्रेस करना भी होता है, दोनों ही डेल्टा एक्स। ये है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। इसमें एक चीज मिस कर रहा है, वो चीज है क्या, जिसको तुम्हें ऐड करना है इसमें। सब काम हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? क्योंकि फोर्स एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम करते क्या है, ये फॉर्मूला में k के आगे एक माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स और डेल्टा एक्स है ना, ये आपस में ऑपोजिट है। मतलब डेल्टा एक्स जिस तरफ है उसके जस्ट ऑपोजिट में तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, के है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो इतना नोट करो। सो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? एफएसपी इक्वल टू माइनस के इंटू, ओके। तो यहां से थोड़ा के का वैल्यू निकालते हैं। माइनस को उधर के लिए भूल जाओ, माइनस तो ऐसे ही डायरेक्शन के लिए दिया गया है। सो के का वैल्यू अगर मैं लिख लूं, सो के का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या? यस करेक्ट। तो इस बात में कह रहे थे ये डेल्टा एक्स को वहां डिवाइड करो। अच्छा, ये डेल्टा एक्स तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ गया ना। डिनोमिनेटर जितना कम होता है ये वाला चीज उतना ज्यादा होता है, ये तो तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा। ये चीज को मैं जितना कम करूंगा ये वैल्यू ओवरऑल उतना ज्यादा है। मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, ये स्प्रिंग के इलास्टिसिटी को इंडिकेट कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना खिंचाव ज्यादा होगा या फिर तुम जितना
कंप्रेशन सॉरी जितना खिंचाव कम होगा, मतलब तुम चाहो और स्प्रिंग को खींचने लेकिन उतने इजीली खींच नहीं पाओगे। तो मान के चलो कि तुम्हारा स्प्रिंग बहुत बढ़िया है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग जितना अच्छे से खींचेगा वो बढ़िया स्प्रिंग है, नहीं, दैट इज ए पुअर क्वालिटी स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर तुम खींचना चाहोगे और वो उतना जल्दी नहीं खींच पा रहा है तो वो बढ़िया स्प्रिंग है। यही इंडिकेट करता है ये ना, डेल्टा एक्स जितना कम होगा के उतना बढ़िया होगा। तुम कभी ध्यान दिए नहीं होंगे, तुम्हारा जो साइकिल का स्टैंड होता है या फिर मोटरसाइकिल का स्टैंड होता है ना, वहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, या फिर सस्पेंशन सिस्टम है जो, वो सब स्प्रिंग में है, स्टील का स्प्रिंग है। एक्चुअली वो एलॉय का होता है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके होता है, वो स्पेशल क्वालिटी मटेरियल कुछ है उसमें। वो वाला स्प्रिंग देखो और तुम्हारा जो बॉल पेन से आता है ना उसमें स्प्रिंग देखो, कौन सा स्प्रिंग का क्वालिटी अच्छा है? ऑब्वियसली वो वाला जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसका के का वैल्यू बहुत बढ़िया है। मतलब अगर तुम्हें स्प्रिंग खरीदना है कभी तो के का वैल्यू देख के खरीदना है, जितना बढ़िया के उतना बढ़िया स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि ये वाला हमेशा कम होना चाहिए, डेल्टा से जितना कम होगा उतना अच्छा स्प्रिंग बनेगा तुम्हारे, मतलब स्प्रिंग फोर्स उतना अच्छा मिलेगा। ये वाला चीज एक तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा, थोड़ा यूनिट वगैरह का चर्चा करते हैं। यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का तो तुम्हें पता है क्या है, मीटर। सो तुम बोल सकते हो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है ना एसआई में, एसआई यूनिट है इसका न्यूटन का। अच्छा, उसका डायमेंशन पता है ना तुम्हें? m1 L1 t का पावर -2 किसका? फोर्स का, और इसका तो पता ही है तुम्हारा e का पावर। तो ये तुम्हारा बन जाएगा m का पावर 1 L का पावर 0 t का पावर। ये है तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट। और फोर्स का तो तुम्हें पहले से ही पता है, चलो इसको थोड़ा नोट कर लो। चलो नोट कर लो उसको। हो गया? चलो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं ना। चलो मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया है ए, यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया है और इनके बीच एक
स्प्रिंग ऐसा अटैच है और ये स्प्रिंग का के तुम्हें गिवन है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हें दे दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसा दे दिया है मान लो। पूछ रहा है क्या है, फाइंड एफएस स्प्रिंग फोर्स निकालो इफ both blocks are displaced by 1 meter each, ऑप्शन है सेम डायरेक्शन, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन वो बोला है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये है तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। दोनों ब्लॉक दिया है ए बी, ओके, बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया है और स्प्रिंग अभी नॉर्मल पोजीशन में है, ये कोई खिंचाव नहीं है इसमें, ये नॉर्मल पोजीशन में है जिसका के तुम्हें गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, और वो पूछ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स निकाल लो अगर दोनों ब्लॉक को तुम्हें 1 मीटर डिस्प्लेस करना है, एक बार सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, तो क्या होगा? अच्छा चलो पहला वाला करते हैं, सेम डायरेक्शन में आगे डिस्प्लेस होगा, मतलब इसको भी 1 मीटर आगे ले जाओ और इसको भी 1 मीटर आगे ले जाओ, मतलब नेट चेंज क्या होगा? नेट चेंज 0 होगा ना, क्यों? क्योंकि देखो ये भी 1 मीटर आगे जाएगा, ये भी 1 मीटर आगे जाएगा, स्प्रिंग तो कुछ खींचा भी नहीं होगा, सो नेट जो एलोंगेशन है स्प्रिंग का वो 0 ही रहेगा। सो एफएसपी निकाल लो, एफएसपी का फॉर्मूला क्या है? माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, राइट? के का वैल्यू ही 0 है ना, सो 0 इंटू डेल्टा एक्स स्प्रिंग फोर्स आएगा 0, मतलब जब सेम डायरेक्शन में तुम इसको भी 1 मीटर आगे लोगे, इसको भी 1 मीटर आगे लोगे, तो स्प्रिंग में कोई भी खिंचाव पैदा नहीं होगा, या फिर तुम बोल सकते हो कि उसका जो डेल्टा एक्स है वो 0 है, तो 0 से तुम k को मल्टीप्लाई करो या फिर 100 न्यूटन पर मीटर में मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा, मतलब स्प्रिंग में कोई स्प्रिंग फोर्स डेवलप नहीं होने वाला है। पहला तुम्हारा आंसर करना। चलो दूसरे को, अच्छा बोल क्या रहा है कि दोनों ब्लॉक को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो और 1-1 मीटर डिस्प्लेस करो, मतलब इसको ये डायरेक्शन में मूव करो 1 मीटर और इसको ऑपोजिट, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन, इसको इस तरफ खींच लो, इसको इस तरफ खींच लो, तो इस तरफ उसको खींचोगे 1 मीटर, उस तरफ उसे खींचोगे 1 मीटर, तो टोटल एलोंगेशन कितना हो गया? 2 मीटर। अभी डेल्टा एक्स का मतलब है 2 मीटर। दूसरे वाला सवाल के लिए, दूसरा वाला सवाल तो निकाल लो ना, एफएसपी कितना होगा? माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, के का वैल्यू दे दिया है 100, डेल्टा एक्स का है 200 न्यूटन, आंसर आ गया। तो दूसरे वाले केस में हमारा स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा करीब करीब 200 न्यूटन ना मीटर में। चलिए